Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کے آنے والے قسط کے حوالے سے ہے۔ تو دوستو آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے فخری اور آرزو انشورنس والے کے پاس آتے ہیں۔ فخری اس آدمی سے کہتا ہے کہ اس کاغذ میں پوری ڈیٹیل ہے کہ ہم آپ سے سونا لے کر گئے تھے اور اپنے گاڑی دے گئے تھے، اس کے پیسے ہمیں چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں کل ہی آپ کو پیسے دے چکا ہوں اور آپ آج کیوں آئے ہیں؟ اور فخری بہت غصے میں آرزو سے کہتا ہے میرے پیسے کہاں چلی گئے، مجھے واپس چاہیے۔ آرزو کہتی ہے فخری کم ڈاؤن ہو جاؤ، مل جائیں گے، ہم کہیں اور جا کے ڈھونڈتے ہیں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیہا اور کریم فضا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فضا ایک لڑکے کو کام بتا رہی ہوتی ہے۔ نیہا کہتی ہے کہ فضا اتنی ریلیکس لگ رہی ہے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور مجھے اب کنفرم ہو گیا ہے کہ باسط زندہ ہے۔ اسی وقت فضا میرال کے پاس فائل لے کر آتی ہے۔ میرال فضا سے کہتی ہے ادھر دیکھو، مسٹر کریم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ ہے، لیکن کریم کے ساتھ تو نیہا ہوتی ہے۔ فضا ان کو پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ نیہا ہے۔ فضا کہتی ہے میں آپ کے پاس یہ فائل چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور وہ میز پر رکھ دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جمیل سورات سے کہتا ہے ہم تمہاری تمام باتوں کو مانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکمت نے تمہارے بچے کو کڈنیپ کیا ہے اور اسے منانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ سمرا وہ سورت کے ہاتھ میں رقم دیکھتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور وہ اس کو مارتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا کہ اس کا بچہ غائب ہے تو وہ تو حکمت کو مار دے گا۔ سمرا اس عورت کو سمجھاتی ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے، کیا تمہارا ہسبینڈ تمہیں مارتا ہے؟ ہم تمہیں اپنے گھر پر رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن وہ عورت کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اس کے بعد نیہا گھر آتی ہے۔ شیراز بھاگ کر اپنے موم سے ملتا ہے۔ نیہا مروے کو شکریہ کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھا، اور نیہا اپنے کمرے میں جا رہی ہوتی ہے۔ مروے شیراز سے کہتی ہے کہ تم کلونا سے کھیلو، میں ابھی آتی ہوں۔ مروے جب نیہا کے کمرے میں جاتی ہے تو نیہا کمرے میں پریشان ہو کر بیٹھے ہوتی ہے۔ مروے نیہا سے کہتی ہے کہ آپ پریشان لگ رہی ہے، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نیہا کہتی ہے کچھ نہیں ہوا، تمہارا بہت شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کے آنے والے قسط کے حوالے سے ہے۔ تو دوستو آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے فخری اور آرزو انشورنس والے کے پاس آتے ہیں۔ فخری اس آدمی سے کہتا ہے کہ اس کاغذ میں پوری ڈیٹیل ہے کہ ہم آپ سے سونا لے کر گئے تھے اور اپنے گاڑی دے گئے تھے، اس کے پیسے ہمیں چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں کل ہی آپ کو پیسے دے چکا ہوں اور آپ آج کیوں آئے ہیں؟ اور فخری بہت غصے میں آرزو سے کہتا ہے میرے پیسے کہاں چلی گئے، مجھے واپس چاہیے۔ آرزو کہتی ہے فخری کم ڈاؤن ہو جاؤ، مل جائیں گے، ہم کہیں اور جا کے ڈھونڈتے ہیں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیہا اور کریم فضا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فضا ایک لڑکے کو کام بتا رہی ہوتی ہے۔ نیہا کہتی ہے کہ فضا اتنی ریلیکس لگ رہی ہے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور مجھے اب کنفرم ہو گیا ہے کہ باسط زندہ ہے۔ اسی وقت فضا میرال کے پاس فائل لے کر آتی ہے۔ میرال فضا سے کہتی ہے ادھر دیکھو، مسٹر کریم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ ہے، لیکن کریم کے ساتھ تو نیہا ہوتی ہے۔ فضا ان کو پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ نیہا ہے۔ فضا کہتی ہے میں آپ کے پاس یہ فائل چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور وہ میز پر رکھ دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جمیل سورات سے کہتا ہے ہم تمہاری تمام باتوں کو مانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکمت نے تمہارے بچے کو کڈنیپ کیا ہے اور اسے منانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ سمرا اس عورت کے ہاتھ میں رقم دیکھتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور وہ اس کو مارتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا کہ اس کا بچہ غائب ہے تو وہ تو حکمت کو مار دے گا۔ سمرا اس عورت کو سمجھاتی ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے، کیا تمہارا ہسبینڈ تمہیں مارتا ہے؟ ہم تمہیں اپنے گھر پر رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن وہ عورت کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اس کے بعد نیہا گھر آتی ہے۔ شیراز بھاگ کر اپنے موم سے ملتا ہے۔ نیہا مروے کو شکریہ کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھا، اور نیہا اپنے کمرے میں جا رہی ہوتی ہے۔ مروے شیراز سے کہتی ہے کہ تم کلونا سے کھیلو، میں ابھی آتی ہوں۔ مروے جب نیہا کے کمرے میں جاتی ہے تو نیہا کمرے میں پریشان ہو کر بیٹھے ہوتی ہے۔ مروے نیہا سے کہتی ہے کہ آپ پریشان لگ رہی ہے، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نیہا کہتی ہے کچھ نہیں ہوا، تمہارا بہت شکریہ۔
السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کے آنے والے قسط کے حوالے سے ہے۔ تو دوستو آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے فخری اور آرزو انشورنس والے کے پاس آتے ہیں۔ فخری اس آدمی سے کہتا ہے کہ اس کاغذ میں پوری ڈیٹیل ہے کہ ہم آپ سے سونا لے کر گئے تھے اور اپنے گاڑی دے گئے تھے، اس کے پیسے ہمیں چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں کل ہی آپ کو پیسے دے چکا ہوں اور آپ آج کیوں آئے ہیں؟ اور فخری بہت غصے میں آرزو سے کہتا ہے میرے پیسے کہاں چلے گئے، مجھے واپس چاہیے۔ آرزو کہتی ہے فخری کم ڈاؤن ہو جاؤ، مل جائیں گے، ہم کہیں اور جا کے ڈھونڈتے ہیں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیہا اور کریم فضا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فضا ایک لڑکے کو کام بتا رہی ہوتی ہے۔ نیہا کہتی ہے کہ فضا اتنی ریلیکس لگ رہی ہے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور مجھے اب کنفرم ہو گیا ہے کہ باسط زندہ ہے۔ اسی وقت فضا میرال کے پاس فائل لے کر آتی ہے۔ میرال فضا سے کہتی ہے ادھر دیکھو، مسٹر کریم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ ہے، لیکن کریم کے ساتھ تو نیہا ہوتی ہے۔ فضا ان کو پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ نیہا ہے۔ فضا کہتی ہے میں آپ کے پاس یہ فائل چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور وہ میز پر رکھ دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جمیل اس عورت سے کہتا ہے ہم تمہاری تمام باتوں کو مانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکمت نے تمہارے بچے کو کڈنیپ کیا ہے اور اسے منانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ سمرا اس عورت کے ہاتھ میں رقم دیکھتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور وہ اس کو مارتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا کہ اس کا بچہ غائب ہے تو وہ تو حکمت کو مار دے گا۔ سمرا اس عورت کو سمجھاتی ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے، کیا تمہارا ہسبینڈ تمہیں مارتا ہے؟ ہم تمہیں اپنے گھر پر رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن وہ عورت کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اس کے بعد نیہا گھر آتی ہے۔ شیراز بھاگ کر اپنے موم سے ملتا ہے۔ نیہا مروے کو شکریہ کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھا، اور نیہا اپنے کمرے میں جا رہی ہوتی ہے۔ مروے شیراز سے کہتی ہے کہ تم کلونا سے کھیلو، میں ابھی آتی ہوں۔ مروے جب نیہا کے کمرے میں جاتی ہے تو نیہا کمرے میں پریشان ہو کر بیٹھے ہوتی ہے۔ مروے نیہا سے کہتی ہے کہ آپ پریشان لگ رہی ہے، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نیہا کہتی ہے کچھ نہیں ہوا، تمہارا بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کے آنے والے قسط کے حوالے سے ہے۔ تو دوستو آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے فخری اور آرزو انشورنس والے کے پاس آتے ہیں۔ فخری اس آدمی سے کہتا ہے کہ اس کاغذ میں پوری ڈیٹیل ہے کہ ہم آپ سے سونا لے کر گئے تھے اور اپنے گاڑی دے گئے تھے، اس کے پیسے ہمیں چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں کل ہی آپ کو پیسے دے چکا ہوں اور آپ آج کیوں آئے ہیں؟ اور فخری بہت غصے میں آرزو سے کہتا ہے میرے پیسے کہاں چلے گئے، مجھے واپس چاہیے۔ آرزو کہتی ہے فخری کم ڈاؤن ہو جاؤ، مل جائیں گے، ہم کہیں اور جا کے ڈھونڈتے ہیں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیہا اور کریم فضا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فضا ایک لڑکے کو کام بتا رہی ہوتی ہے۔ نیہا کہتی ہے کہ فضا اتنی ریلیکس لگ رہی ہے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور مجھے اب کنفرم ہو گیا ہے کہ باسط زندہ ہے۔ اسی وقت فضا میرال کے پاس فائل لے کر آتی ہے۔ میرال فضا سے کہتی ہے ادھر دیکھو، مسٹر کریم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ ہے، لیکن کریم کے ساتھ تو نیہا ہوتی ہے۔ فضا ان کو پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ نیہا ہے۔ فضا کہتی ہے میں آپ کے پاس یہ فائل چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور وہ میز پر رکھ دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جمیل اس عورت سے کہتا ہے ہم تمہاری تمام باتوں کو مانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکمت نے تمہارے بچے کو کڈنیپ کیا ہے اور اسے منانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ سمرا اس عورت کے ہاتھ میں رقم دیکھتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور وہ اس کو مارتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا کہ اس کا بچہ غائب ہے تو وہ تو حکمت کو مار دے گا۔ سمرا اس عورت کو سمجھاتی ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے، کیا تمہارا ہسبینڈ تمہیں مارتا ہے؟ ہم تمہیں اپنے گھر پر رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن وہ عورت کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اس کے بعد نیہا گھر آتی ہے۔ شیراز بھاگ کر اپنے موم سے ملتا ہے۔ نیہا مروے کو شکریہ کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھا، اور نیہا اپنے کمرے میں جا رہی ہوتی ہے۔ مروے شیراز سے کہتی ہے کہ تم کلونا سے کھیلو، میں ابھی آتی ہوں۔ مروے جب نیہا کے کمرے میں جاتی ہے تو نیہا کمرے میں پریشان ہو کر بیٹھے ہوتی ہے۔ مروے نیہا سے کہتی ہے کہ آپ پریشان لگ رہی ہے، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نیہا کہتی ہے کچھ نہیں ہوا، تمہارا بہت شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के आने वाले किस के हवाले से है। तो दोस्तों आने वाले किस में आप देखेंगे फखरी और आरजू इंश्योरेंस वाले के पास आते हैं। फखरी उस आदमी से कहता है कि इस कागज में पूरी डिटेल है कि हम आपसे सोना लेकर गए थे और अपने गाड़ी दे गए थे, उसके पैसे हमें चाहिए। वो आदमी कहता है मैं कल ही आपको पैसे दे चुका हूँ और आप आज क्यों आए हैं। और फखरी बहुत गुस्से में आरजू से कहता है मेरे पैसे कहाँ चले गए, मुझे वापस चाहिए। आरजू कहती है फखरी कम डाउन हो जाओ, मिल जाएंगे। हम कहीं और जाके ढूंढते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेहा और करीम फिजा को देख रहे होते हैं। फिजा एक लड़के को काम बता रही होती है। नेहा कहती है कि फिजा इतनी रिलैक्स लग रही है, ऐसा लगता नहीं है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। और मुझे अब कन्फर्म हो गया है कि बासित जिंदा है। उसी वक्त फिजा मिराल के पास फाइल लेकर आती है। मिराल फिजा से कहती है उधर देखो, मिस्टर करीम अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन करीम के साथ तो नेहा होती है। फिजा उनको पीछे से देख रही होती है और इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि वो नेहा है। फिजा कहती है मैं आपके पास ये फाइल छोड़कर जा रही हूँ, और वो मेज पर रख देती है और चली जाती है। इसके बाद जमील उस औरत से कहता है हम तुम्हारी तमाम बातों को मानते हैं और हम समझते हैं कि हिकमत ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है। समरा उस औरत के हाथ में रकम देखती है और वो सोचती है कि इसका हस्बैंड ठीक आदमी नहीं है और वो इसको मारता है। वो औरत कहती है अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि उसका बच्चा गायब है तो वो तो हिकमत को मार देगा। समरा उस औरत को समझाती है मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है? हम तुम्हें अपने घर पर रखेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद नेहा घर आती है। शिराज भाग कर अपने मोम से मिलता है। नेहा मरवे को शुक्रिया कहती है कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा, और नेहा अपने कमरे में जा रही होती है। मरवे शिराज से कहती है कि तुम कलोना से खेलो, मैं अभी आती हूँ। मरवे जब नेहा के कमरे में जाती है तो नेहा कमरे में परेशान होकर बैठे होती है। मरवे नेहा से कहती है कि आप परेशान लग रही है, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नेहा कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के आने वाले किस के हवाले से है। तो दोस्तों आने वाले किस में आप देखेंगे फखरी और आरजू इंश्योरेंस वाले के पास आते हैं। फखरी उस आदमी से कहता है कि इस कागज में पूरी डिटेल है कि हम आपसे सोना लेकर गए थे और अपने गाड़ी दे गए थे, उसके पैसे हमें चाहिए। वो आदमी कहता है मैं कल ही आपको पैसे दे चुका हूँ और आप आज क्यों आए हैं। और फखरी बहुत गुस्से में आरजू से कहता है मेरे पैसे कहाँ चले गए, मुझे वापस चाहिए। आरजू कहती है फखरी कम डाउन हो जाओ, मिल जाएंगे। हम कहीं और जाके ढूंढते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेहा और करीम फिजा को देख रहे होते हैं। फिजा एक लड़के को काम बता रही होती है। नेहा कहती है कि फिजा इतनी रिलैक्स लग रही है, ऐसा लगता नहीं है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। और मुझे अब कन्फर्म हो गया है कि बासित जिंदा है। उसी वक्त फिजा मिराल के पास फाइल लेकर आती है। मिराल फिजा से कहती है उधर देखो, मिस्टर करीम अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन करीम के साथ तो नेहा होती है। फिजा उनको पीछे से देख रही होती है और इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि वो नेहा है। फिजा कहती है मैं आपके पास ये फाइल छोड़कर जा रही हूँ, और वो मेज पर रख देती है और चली जाती है। इसके बाद जमील उस औरत से कहता है हम तुम्हारी तमाम बातों को मानते हैं और हम समझते हैं कि हिकमत ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है। समरा उस औरत के हाथ में रकम देखती है और वो सोचती है कि इसका हस्बैंड ठीक आदमी नहीं है और वो इसको मारता है। वो औरत कहती है अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि उसका बच्चा गायब है तो वो तो हिकमत को मार देगा। समरा उस औरत को समझाती है मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है? हम तुम्हें अपने घर पर रखेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद नेहा घर आती है। शिराज भाग कर अपने मोम से मिलता है। नेहा मरवे को शुक्रिया कहती है कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा, और नेहा अपने कमरे में जा रही होती है। मरवे शिराज से कहती है कि तुम कलोना से खेलो, मैं अभी आती हूँ। मरवे जब नेहा के कमरे में जाती है तो नेहा कमरे में परेशान होकर बैठे होती है। मरवे नेहा से कहती है कि आप परेशान लग रही है, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नेहा कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के आने वाले किस के हवाले से है। तो दोस्तों आने वाली किस में आप देखेंगे फखरी और आरजू इंश्योरेंस वाले के पास आते हैं। फखरी उस आदमी से कहता है कि इस कागज में पूरी डिटेल है कि हम आपसे सोना लेकर गए थे और अपने गाड़ी दे गए थे, उसके पैसे हमें चाहिए। वो आदमी कहता है मैं कल ही आपको पैसे दे चुका हूँ और आप आज क्यों आए हैं। और फखरी बहुत गुस्से में आरजू से कहता है मेरे पैसे कहाँ चले गए, मुझे वापस चाहिए। आरजू कहती है फखरी कम डाउन हो जाओ, मिल जाएंगे, हम कहीं और जाके ढूंढते हैं। और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेहा और करीम फिजा को देख रहे होते हैं। फिजा एक लड़के को काम बता रही होती है। नेहा कहती है कि फिजा इतनी रिलैक्स लग रही है, ऐसा लगता नहीं है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और मुझे अब कन्फर्म हो गया है कि बासित जिंदा है। उसी वक्त फिजा मिराल के पास फाइल लेकर आती है। मिराल फिजा से कहती है उधर देखो, मिस्टर करीम अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन करीम के साथ तो नेहा होती है। फिजा उनको पीछे से देख रही होती है और इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि वो नेहा है। फिजा कहती है मैं आपके पास ये फाइल छोड़कर जा रही हूँ और वो मेज पर रख देती है और चली जाती है। इसके बाद जमील उस औरत से कहता है हम तुम्हारी तमाम बातों को मानते हैं और हम समझते हैं कि हिकमत ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है। समरा उस औरत के हाथ में रकम देखती है और वो सोचती है कि इसका हस्बैंड ठीक आदमी नहीं है और वो इसको मारता है। वो औरत कहती है अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि उसका बच्चा गायब है तो वो तो हिकमत को मार देगा। समरा उस औरत को समझाती है मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है? हम तुम्हें अपने घर पर रखेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद नेहा घर आती है। शिराज भागकर अपने मोम से मिलता है। नेहा मरवे को शुक्रिया कहती है कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा और नेहा अपने कमरे में जा रही होती है। मरवे शिराज से कहती है कि तुम कलोना से खेलो, मैं अभी आती हूँ। मरवे जब नेहा के कमरे में जाती है तो नेहा कमरे में परेशान होकर बैठे होती है। मरवे नेहा से कहती है कि आप परेशान लग रही है, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नेहा कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के आने वाले किस के हवाले से है। तो दोस्तों आने वाले किस में आप देखेंगे फखरी और आरजू इंश्योरेंस वाले के पास आते हैं। फखरी उस आदमी से कहता है कि इस कागज में पूरी डिटेल है कि हम आपसे सोना लेकर गए थे और अपने गाड़ी दे गए थे, उसके पैसे हमें चाहिए। वो आदमी कहता है मैं कल ही आपको पैसे दे चुका हूँ और आप आज क्यों आए हैं। और फखरी बहुत गुस्से में आरजू से कहता है मेरे पैसे कहाँ चले गए, मुझे वापस चाहिए। आरजू कहती है फखरी कम डाउन हो जाओ, मिल जाएंगे, हम कहीं और जाके ढूंढते हैं। और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेहा और करीम फिजा को देख रहे होते हैं। फिजा एक लड़के को काम बता रही होती है। नेहा कहती है कि फिजा इतनी रिलैक्स लग रही है, ऐसा लगता नहीं है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और मुझे अब कन्फर्म हो गया है कि बासित जिंदा है। उसी वक्त फिजा मिराल के पास फाइल लेकर आती है। मिराल फिजा से कहती है उधर देखो, मिस्टर करीम अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन करीम के साथ तो नेहा होती है। फिजा उनको पीछे से देख रही होती है और इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि वो नेहा है। फिजा कहती है मैं आपके पास ये फाइल छोड़कर जा रही हूँ और वो मेज पर रख देती है और चली जाती है। इसके बाद जमील उस औरत से कहता है हम तुम्हारी तमाम बातों को मानते हैं और हम समझते हैं कि हिकमत ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है। समरा उस औरत के हाथ में रकम देखती है और वो सोचती है कि इसका हस्बैंड ठीक आदमी नहीं है और वो इसको मारता है। वो औरत कहती है अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि उसका बच्चा गायब है तो वो तो हिकमत को मार देगा। समरा उस औरत को समझाती है मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है? हम तुम्हें अपने घर पर रखेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद नेहा घर आती है। शिराज भागकर अपने मोम से मिलता है। नेहा मरवे को शुक्रिया कहती है कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा और नेहा अपने कमरे में जा रही होती है। मरवे शिराज से कहती है कि तुम कलोना से खेलो, मैं अभी आती हूँ। मरवे जब नेहा के कमरे में जाती है तो नेहा कमरे में परेशान होकर बैठे होती है। मरवे नेहा से कहती है कि आप परेशान लग रही है, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नेहा कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کے آنے والے قسط کے حوالے سے ہے۔ تو دوستو آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے فخری اور آرزو انشورنس والے کے پاس آتے ہیں۔ فخری اس آدمی سے کہتا ہے کہ اس کاغذ میں پوری ڈیٹیل ہے کہ ہم آپ سے سونا لے کر گئے تھے اور اپنے گاڑی دے گئے تھے، اس کے پیسے ہمیں چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں کل ہی آپ کو پیسے دے چکا ہوں اور آپ آج کیوں آئے ہیں؟ اور فخری بہت غصے میں آرزو سے کہتا ہے میرے پیسے کہاں چلے گئے، مجھے واپس چاہیے۔ آرزو کہتی ہے فخری کم ڈاؤن ہو جاؤ، مل جائیں گے، ہم کہیں اور جا کے ڈھونڈتے ہیں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیہا اور کریم فضا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فضا ایک لڑکے کو کام بتا رہی ہوتی ہے۔ نیہا کہتی ہے کہ فضا اتنی ریلیکس لگ رہی ہے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور مجھے اب کنفرم ہو گیا ہے کہ باسط زندہ ہے۔ اسی وقت فضا میرال کے پاس فائل لے کر آتی ہے۔ میرال فضا سے کہتی ہے ادھر دیکھو، مسٹر کریم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ ہے، لیکن کریم کے ساتھ تو نیہا ہوتی ہے۔ فضا ان کو پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ نیہا ہے۔ فضا کہتی ہے میں آپ کے پاس یہ فائل چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور وہ میز پر رکھ دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جمیل اس عورت سے کہتا ہے ہم تمہاری تمام باتوں کو مانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکمت نے تمہارے بچے کو کڈنیپ کیا ہے اور اسے منانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ سمرا اس عورت کے ہاتھ میں رقم دیکھتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور وہ اس کو مارتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا کہ اس کا بچہ غائب ہے تو وہ تو حکمت کو مار دے گا۔ سمرا اس عورت کو سمجھاتی ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے، کیا تمہارا ہسبینڈ تمہیں مارتا ہے؟ ہم تمہیں اپنے گھر پر رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن وہ عورت کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اس کے بعد نیہا گھر آتی ہے۔ شیراز بھاگ کر اپنے موم سے ملتا ہے۔ نیہا مروے کو شکریہ کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھا، اور نیہا اپنے کمرے میں جا رہی ہوتی ہے۔ مروے شیراز سے کہتی ہے کہ تم کلونا سے کھیلو، میں ابھی آتی ہوں۔ مروے جب نیہا کے کمرے میں جاتی ہے تو نیہا کمرے میں پریشان ہو کر بیٹھے ہوتی ہے۔ مروے نیہا سے کہتی ہے کہ آپ پریشان لگ رہی ہے، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نیہا کہتی ہے کچھ نہیں ہوا، تمہارا بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کے آنے والے قسط کے حوالے سے ہے۔ تو دوستو آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے فخری اور آرزو انشورنس والے کے پاس آتے ہیں۔ فخری اس آدمی سے کہتا ہے کہ اس کاغذ میں پوری ڈیٹیل ہے کہ ہم آپ سے سونا لے کر گئے تھے اور اپنے گاڑی دے گئے تھے، اس کے پیسے ہمیں چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں کل ہی آپ کو پیسے دے چکا ہوں اور آپ آج کیوں آئے ہیں؟ اور فخری بہت غصے میں آرزو سے کہتا ہے میرے پیسے کہاں چلے گئے، مجھے واپس چاہیے۔ آرزو کہتی ہے فخری کم ڈاؤن ہو جاؤ، مل جائیں گے، ہم کہیں اور جا کے ڈھونڈتے ہیں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیہا اور کریم فضا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فضا ایک لڑکے کو کام بتا رہی ہوتی ہے۔ نیہا کہتی ہے کہ فضا اتنی ریلیکس لگ رہی ہے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور مجھے اب کنفرم ہو گیا ہے کہ باسط زندہ ہے۔ اسی وقت فضا میرال کے پاس فائل لے کر آتی ہے۔ میرال فضا سے کہتی ہے ادھر دیکھو، مسٹر کریم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ ہے، لیکن کریم کے ساتھ تو نیہا ہوتی ہے۔ فضا ان کو پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ نیہا ہے۔ فضا کہتی ہے میں آپ کے پاس یہ فائل چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور وہ میز پر رکھ دیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جمیل اس عورت سے کہتا ہے ہم تمہاری تمام باتوں کو مانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکمت نے تمہارے بچے کو کڈنیپ کیا ہے اور اسے منانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ سمرا اس عورت کے ہاتھ میں رقم دیکھتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور وہ اس کو مارتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اگر میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا کہ اس کا بچہ غائب ہے تو وہ تو حکمت کو مار دے گا۔ سمرا اس عورت کو سمجھاتی ہے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے، کیا تمہارا ہسبینڈ تمہیں مارتا ہے؟ ہم تمہیں اپنے گھر پر رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن وہ عورت کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اس کے بعد نیہا گھر آتی ہے۔ شیراز بھاگ کر اپنے موم سے ملتا ہے۔ نیہا مروے کو شکریہ کہتی ہے کہ تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھا، اور نیہا اپنے کمرے میں جا رہی ہوتی ہے۔ مروے شیراز سے کہتی ہے کہ تم کلونا سے کھیلو، میں ابھی آتی ہوں۔ مروے جب نیہا کے کمرے میں جاتی ہے تو نیہا کمرے میں پریشان ہو کر بیٹھے ہوتی ہے۔ مروے نیہا سے کہتی ہے کہ آپ پریشان لگ رہی ہے، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نیہا کہتی ہے کچھ نہیں ہوا، تمہارا بہت شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के आने वाले किस के हवाले से है। तो दोस्तों आने वाले किस में आप देखेंगे फखरी और आरजू इंश्योरेंस वाले के पास आते हैं। फखरी उस आदमी से कहता है कि इस कागज में पूरी डिटेल है कि हम आपसे सोना लेकर गए थे और अपने गाड़ी दे गए थे, उसके पैसे हमें चाहिए। वो आदमी कहता है मैं कल ही आपको पैसे दे चुका हूँ और आप आज क्यों आए हैं। और फखरी बहुत गुस्से में आरजू से कहता है मेरे पैसे कहाँ चले गए, मुझे वापस चाहिए। आरजू कहती है फखरी कम डाउन हो जाओ, मिल जाएंगे। हम कहीं और जाके ढूंढते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेहा और करीम फिजा को देख रहे होते हैं। फिजा एक लड़के को काम बता रही होती है। नेहा कहती है कि फिजा इतनी रिलैक्स लग रही है, ऐसा लगता नहीं है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। और मुझे अब कन्फर्म हो गया है कि बासित जिंदा है। उसी वक्त फिजा मिराल के पास फाइल लेकर आती है। मिराल फिजा से कहती है उधर देखो, मिस्टर करीम अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन करीम के साथ तो नेहा होती है। फिजा उनको पीछे से देख रही होती है और इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि वो नेहा है। फिजा कहती है मैं आपके पास ये फाइल छोड़कर जा रही हूँ, और वो मेज पर रख देती है और चली जाती है। इसके बाद जमील उस औरत से कहता है हम तुम्हारी तमाम बातों को मानते हैं और हम समझते हैं कि हिकमत ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है। समरा उस औरत के हाथ में रकम देखती है और वो सोचती है कि इसका हस्बैंड ठीक आदमी नहीं है और वो इसको मारता है। वो औरत कहती है अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि उसका बच्चा गायब है तो वो तो हिकमत को मार देगा। समरा उस औरत को समझाती है मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है? हम तुम्हें अपने घर पर रखेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद नेहा घर आती है। शिराज भाग कर अपने मॉम से मिलता है। नेहा मरवे को शुक्रिया कहती है कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा, और नेहा अपने कमरे में जा रही होती है। मरवे शिराज से कहती है कि तुम कलोना से खेलो, मैं अभी आती हूँ। मरवे जब नेहा के कमरे में जाती है तो नेहा कमरे में परेशान होकर बैठे होती है। मरवे नेहा से कहती है कि आप परेशान लग रही है, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नेहा कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के आने वाले किस के हवाले से है। तो दोस्तों आने वाले किस में आप देखेंगे फखरी और आरजू इंश्योरेंस वाले के पास आते हैं। फखरी उस आदमी से कहता है कि इस कागज में पूरी डिटेल है कि हम आपसे सोना लेकर गए थे और अपने गाड़ी दे गए थे, उसके पैसे हमें चाहिए। वो आदमी कहता है मैं कल ही आपको पैसे दे चुका हूँ और आप आज क्यों आए हैं। और फखरी बहुत गुस्से में आरजू से कहता है मेरे पैसे कहाँ चले गए, मुझे वापस चाहिए। आरजू कहती है फखरी कम डाउन हो जाओ, मिल जाएंगे। हम कहीं और जाके ढूंढते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेहा और करीम फिजा को देख रहे होते हैं। फिजा एक लड़के को काम बता रही होती है। नेहा कहती है कि फिजा इतनी रिलैक्स लग रही है, ऐसा लगता नहीं है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। और मुझे अब कन्फर्म हो गया है कि बासित जिंदा है। उसी वक्त फिजा मिराल के पास फाइल लेकर आती है। मिराल फिजा से कहती है उधर देखो, मिस्टर करीम अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन करीम के साथ तो नेहा होती है। फिजा उनको पीछे से देख रही होती है और इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि वो नेहा है। फिजा कहती है मैं आपके पास ये फाइल छोड़कर जा रही हूँ, और वो मेज पर रख देती है और चली जाती है। इसके बाद जमील उस औरत से कहता है हम तुम्हारी तमाम बातों को मानते हैं और हम समझते हैं कि हिकमत ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है। समरा उस औरत के हाथ में रकम देखती है और वो सोचती है कि इसका हस्बैंड ठीक आदमी नहीं है और वो इसको मारता है। वो औरत कहती है अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि उसका बच्चा गायब है तो वो तो हिकमत को मार देगा। समरा उस औरत को समझाती है मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है? हम तुम्हें अपने घर पर रखेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद नेहा घर आती है। शिराज भाग कर अपने मॉम से मिलता है। नेहा मरवे को शुक्रिया कहती है कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा, और नेहा अपने कमरे में जा रही होती है। मरवे शिराज से कहती है कि तुम कलोना से खेलो, मैं अभी आती हूँ। मरवे जब नेहा के कमरे में जाती है तो नेहा कमरे में परेशान होकर बैठे होती है। मरवे नेहा से कहती है कि आप परेशान लग रही है, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नेहा कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के आने वाले किस के हवाले से है। तो दोस्तों आने वाली किस में आप देखेंगे फखरी और आरजू इंश्योरेंस वाले के पास आते हैं। फखरी उस आदमी से कहता है कि इस कागज में पूरी डिटेल है कि हम आपसे सोना लेकर गए थे और अपने गाड़ी दे गए थे, उसके पैसे हमें चाहिए। वो आदमी कहता है मैं कल ही आपको पैसे दे चुका हूँ और आप आज क्यों आए हैं। और फखरी बहुत गुस्से में आरजू से कहता है मेरे पैसे कहाँ चले गए, मुझे वापस चाहिए। आरजू कहती है फखरी कम डाउन हो जाओ, मिल जाएंगे, हम कहीं और जाके ढूंढते हैं। और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेहा और करीम फिजा को देख रहे होते हैं। फिजा एक लड़के को काम बता रही होती है। नेहा कहती है कि फिजा इतनी रिलैक्स लग रही है, ऐसा लगता नहीं है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और मुझे अब कन्फर्म हो गया है कि बासित जिंदा है। उसी वक्त फिजा मिराल के पास फाइल लेकर आती है। मिराल फिजा से कहती है उधर देखो, मिस्टर करीम अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन करीम के साथ तो नेहा होती है। फिजा उनको पीछे से देख रही होती है और इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि वो नेहा है। फिजा कहती है मैं आपके पास ये फाइल छोड़कर जा रही हूँ और वो मेज पर रख देती है और चली जाती है। इसके बाद जमील उस औरत से कहता है हम तुम्हारी तमाम बातों को मानते हैं और हम समझते हैं कि हिकमत ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है। समरा उस औरत के हाथ में रकम देखती है और वो सोचती है कि इसका हस्बैंड ठीक आदमी नहीं है और वो इसको मारता है। वो औरत कहती है अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि उसका बच्चा गायब है तो वो तो हिकमत को मार देगा। समरा उस औरत को समझाती है मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है? हम तुम्हें अपने घर पर रखेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद नेहा घर आती है। शिराज भाग कर अपने मोम से मिलता है। नेहा मरवे को शुक्रिया कहती है कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा और नेहा अपने कमरे में जा रही होती है। मरवे शिराज से कहती है कि तुम कलोना से खेलो, मैं अभी आती हूँ। मरवे जब नेहा के कमरे में जाती है तो नेहा कमरे में परेशान होकर बैठे होती है। मरवे नेहा से कहती है कि आप परेशान लग रही है, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नेहा कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के आने वाले किस के हवाले से है। तो दोस्तों आने वाली किस में आप देखेंगे फखरी और आरजू इंश्योरेंस वाले के पास आते हैं। फखरी उस आदमी से कहता है कि इस कागज में पूरी डिटेल है कि हम आपसे सोना लेकर गए थे और अपने गाड़ी दे गए थे, उसके पैसे हमें चाहिए। वो आदमी कहता है मैं कल ही आपको पैसे दे चुका हूँ और आप आज क्यों आए हैं। और फखरी बहुत गुस्से में आरजू से कहता है मेरे पैसे कहाँ चले गए, मुझे वापस चाहिए। आरजू कहती है फखरी कम डाउन हो जाओ, मिल जाएंगे, हम कहीं और जाके ढूंढते हैं। और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नेहा और करीम फिजा को देख रहे होते हैं। फिजा एक लड़के को काम बता रही होती है। नेहा कहती है कि फिजा इतनी रिलैक्स लग रही है, ऐसा लगता नहीं है कि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और मुझे अब कन्फर्म हो गया है कि बासित जिंदा है। उसी वक्त फिजा मिराल के पास फाइल लेकर आती है। मिराल फिजा से कहती है उधर देखो, मिस्टर करीम अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन करीम के साथ तो नेहा होती है। फिजा उनको पीछे से देख रही होती है और इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि वो नेहा है। फिजा कहती है मैं आपके पास ये फाइल छोड़कर जा रही हूँ और वो मेज पर रख देती है और चली जाती है। इसके बाद जमील उस औरत से कहता है हम तुम्हारी तमाम बातों को मानते हैं और हम समझते हैं कि हिकमत ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है। समरा उस औरत के हाथ में रकम देखती है और वो सोचती है कि इसका हस्बैंड ठीक आदमी नहीं है और वो इसको मारता है। वो औरत कहती है अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि उसका बच्चा गायब है तो वो तो हिकमत को मार देगा। समरा उस औरत को समझाती है मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है? हम तुम्हें अपने घर पर रखेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद नेहा घर आती है। शिराज भाग कर अपने मोम से मिलता है। नेहा मरवे को शुक्रिया कहती है कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा और नेहा अपने कमरे में जा रही होती है। मरवे शिराज से कहती है कि तुम कलोना से खेलो, मैं अभी आती हूँ। मरवे जब नेहा के कमरे में जाती है तो नेहा कमरे में परेशान होकर बैठे होती है। मरवे नेहा से कहती है कि आप परेशान लग रही है, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नेहा कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।